নমস্কার, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আমি চিফ রিপোর্টার নিউজ টুডে ইন্ডিয়া, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ রিপোর্টার রাজ সাহানির সঙ্গে এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে আপনাদের জন্য হাজির হয়েছি। ধর্ম যার যার, ধর্ম নিজস্ব কিন্তু উৎসব সবার, এটাই মিনি ভারতবর্ষ ইসলামপুরের সবচেয়ে বড় পেহচান বা সবচেয়ে বড় হচ্ছে তাদের চিহ্নিতকরণের হচ্ছে একটা প্রয়াস। আপনাদের জানিয়ে দিই, সর্বধর্ম হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই ভারত মাকে চার সিপাহী তাদের সমস্ত উৎসব কিন্তু ইসলামপুর শহর মিনি ভারতবর্ষে বলা চলে শান্তিপ্রিয়ভাবে হচ্ছে পালিত হয়। আপনাদের জানিয়ে দিই, একদিকে রামনবমীর জুলুস বা মিছিল থেকে শুরু করে সমস্ত উৎসবগুলিতে এখানে কিন্তু শান্তিপ্রিয় মানুষরা একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমে উদযাপন করেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, অন্যান্য উৎসবের মতো অবশ্যই বিশ্বপ্রিয় নবী এবং তার পাশাপাশি শান্তির দূত হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের জন্মদিন বা নবী দিবস আগামীকাল ঈদ মিলাদুন নবী হিসাবে ইসলামপুর শহরে সাড়ম্বরে পালিত হবে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে অবশ্যই ইসলামিক তানজিম তারা কিন্তু ইতিমধ্যে চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। কড়া এবং নিবিড় পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আগামীর ইসলামপুর শহর কিন্তু দেখবে এক সুন্দর একটা পরিবেশ, যেখানে অবশ্যই শান্তি এবং সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে অবশ্যই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন কিন্তু তাদের যে কার্যক্রম বিশেষ করে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের জন্মদিনকে উদযাপিত করবেন। তার মধ্যে অবশ্যই ইসলামপুরের প্রথিতযশা এবং স্বনামধন্য অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটি তারা কিন্তু প্রতি বছরই এই বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের জন্মদিনে রক্তদান করে অন্ততপক্ষে মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার যে প্রয়াস এবং শান্তির যে বার্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বার্তা, সেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, প্রতি বছর বলা চলে যে কোর্ট মাঠে কিন্তু এই অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু এবছর এই কোর্ট মাঠে ইসলামপুরের বহু প্রতীক্ষিত যে মেলা, সেই মিলন মেলা বা বলা চলেছে এক্সপো মেলা থাকার কারণে বিগত বছরের মতো এবছর ইসলামপুর যে মুক্ত মঞ্চ, সেখানে কিন্তু জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবীর আয়োজন চলছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বিগত বছর আমরা দেখেছিলাম, এবছরও কিন্তু বংশী ভাই বলে পরিচিত এবং আমাদের সকলের প্রিয় মসরুর ভাইয়ের তদারকিতে কিন্তু এই মুহূর্তে মুক্ত মঞ্চে শেষ মুহূর্তের যে প্রস্তুতি, বিশেষ করে ঈদ মিলাদুন নবীর উপলক্ষে তারা যে ব্যবস্থাপনা করেন রক্তদান শিবিরের, এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই খিচড়া বা অবশ্যই হচ্ছে তাবাররুকের যে ইন্তজামাত করেন তা কিন্তু এই মুহূর্তে চলছে। আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে লাইট জ্বালিয়ে এবং রাত জেগে রীতিমতো সেই কার্যক্রম চলবে। তার পাশাপাশি একদম তদারকিতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে বিভিন্ন জায়গায়। অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটি বাদেও একাধিক ইসলামিক সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান, এমনকি বলা চলে যারা হচ্ছে সনাতনী রয়েছেন তারাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে ঠিক যেমনভাবে হচ্ছে এই জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবীতে প্রত্যেককে সহযোগিতা করেন, পানীয় জল থেকে শুরু করে শরবত ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। তা কিন্তু নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে মেলবন্ধন তার একটা চূড়ান্ত দৃশ্য আগামীকাল দেখবে। একদিকে রামনবমীর সেই মহামিছিলে ঠিক যেমন আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সনাতনীদের জন্য পানীয় জল থেকে শরবত সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেন, আর তার ঠিক উল্টো চিত্র কিন্তু আমরা দেখতে পাই মিনি ভারতবর্ষ ইসলামপুরে, যেখানে সর্বধর্মের মানুষ বসবাস করেন এবং একে অপরের পরিপূরক হিসাবে উৎসবে কিন্তু সহযোগিতা করেন। सबसे पहले मसरूर भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि हर साल की तरह इस साल भी आप कामयाब है टू सम एक्सटेंट कि जो इंतज़ाम किया जाता है और ब्लड डोनेशन का इनाकात हम लोग करते हैं, आगाज़ करते हैं, उसका तैयारियाँ चल रही है। खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे और इस बार जुलूस जो है अमन और शांति के साथ विदाउट डीजे, जैसे कि आप बहुत सारी जगह में कह चुके हैं, अपने तंजीम को भी आप इसके बारे में इत्तला कर चुके हैं, उस तरह से होगा। क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी तैयारी, और इस वक्त देख रहे हैं कि पूरा आप मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक थके हुए हैं, एक थकावन लेके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसका भी समझा कि मतलब इसको दिखाया जाए, लोगों में बताया जाए। हर साल दिखाते हैं। जी बिल्कुल। जब से ओरिजिनल में जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं तब से देख रहा हूँ कि मतलब आप लोग हमेशा से प्रोग्राम में आते ही हैं, और उससे पहले भी एक दो बार मतलब लोगों तक खबर पहुंचाते हैं कि क्या करना चाहिए, हाँ, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। गाइडलाइंस भी हम बताते हैं, कई बार भी आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं कि हम लोग का क्या क्या गाइडलाइंस रहता है। तो अभी आप इस वक्त पे आए कि हम प्रोग्राम में ही है, समझिए कि हमारा सुबह से 6 बजे से लेकर अभी तक हम लोग परेशान हो रहे हैं, और लगभग रात भर हम लोग का यहाँ पे जो है खाना पकेगा। तो वही है कि यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। उसके साथ साथ कि यहाँ पे हम लोग कुछ खाने का इंतजाम, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं तो सबको तबर्रुक के तौर पर इस्लाम में जो फातिहा का जो तबर्रुक होता है, नियाज होता है, उसके लिए हम लोग इंतजाम करते हैं। तो इस बार भी हम लोग वही थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक कुछ पहुँचाया जाए, इसलिए हम लोग फिर से खिचड़ा का इंतजाम किया, क्योंकि बिरयानी में बहुत परेशानी हो जाती है, अच्छे बावर्ची भी नहीं मिलते हैं। तो इस बार हम लोग खिचड़ा का प्रोग्राम किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि कल जो लोग बाबू हुजूर जो है हमारे
जो पीर मुर्शिद है उन्होंने 9:15 बजे का टाइम दिया कि 9 बजे वो पहुंचेंगे, 9:15 बजे तक फातिहा होकर वहां से जुलूस निकलेगी मार्केटिंग से। जी जी हाँ, आश्रम पारा होते हुए जैसे टर्मिनल, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ पे फिर दुआ होगी, दुआ होने के बाद यहाँ पे हम लोग जो आपका खिचड़ा है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो लोग मतलब अपनी मर्जी से ब्लड देते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा ब्लड देते हैं, लेकिन अगली बार क्या हुआ था कि ये ठीक मेला आप देख पा रहे हैं कोर्ट मैदान में, अगली बार भी मेला था जिसकी वजह हमें परेशानी हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, पहली बार था और ये हॉल भी नया बना था उस वक्त, तो लोगों को पता नहीं था, तो बहुत सारे कम लोग आए थे, फिर भी 57 ब्लड हुआ था यहाँ पे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार लगभग 100 तक पहुंचे ये ब्लड डोनेशन में, जो ब्लड डोनर्स है कम से कम 100 पहुंचे। हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब ब्लड डोनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि कोर्ट मैदान में होता था तो एक तो अलग मजा आता था, उसमें बहुत जमात होता था और हमें भी परेशानी नहीं होती थी बांटने में। आप देख पा रहे हैं कि सामने हमने छोटा सा एक टेंट लगाया है उसमें बांटने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को एक छोटा सा टेंट में कवर ये करना बहुत परेशानी होती है। कोर्ट मैदान बहुत बड़ा, एक गेट में करते हैं तो एक गेट से घुसता है, 2 गेट निकलने के लिए आदमी उधर से निकल जाता है। उम्मीद रखते हैं कि अगले साल जी जी उम्मीद है मैदान अवेलेबल होगा। हाँ नहीं, जो से भी बात हुई, चेयरमैन से भी उस दिन बात हुई तो वो लोग बताए कि नहीं अगले साल से ये होगा कि इसमें ऊपर खाली रखा जाएगा मैदान, ऐसा मेला का नहीं होगा कि उस दिन मीटिंग में बोला गया। लेकिन हम फिर भी देख पा रहे हैं कि अभी भी हम चेयरमैन से बात किए, लेकिन जितना हमें मदद मिलना चाहिए था प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से जो मदद मिलना चाहिए था, हम देख पा रहे हैं कि उतना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसे ये सोचने वाली बात है कि पानी के बारे में बोले थे, अभी तक हमको पानी नहीं मिला। एक जो मुक्त मंच है कि मेरे ख्याल में एक जो हॉल है यहाँ पे, बाथरूम भी है, लोगों को बाथरूम भी लगता होता है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा वो नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे मोटर नहीं है। अच्छा अब एक आदमी है यहाँ पे, अगर बाथरूम लगे वो जाएगा कहाँ पे? तो क्योंकि बाथरूम है तो वहाँ पे मोटर में चाहिए, पानी होना चाहिए, यहाँ पे मोटर भी नहीं है, तो ये पानी की व्यवस्था, इससे हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है कि हमें नहीं। अभी एक कोई यहाँ पे मंच ये था, मंच में क्या बोले आपका कि नाटक का कोई प्रोग्राम था, तो हमें ये लगा कि हमें ये बिल्कुल बताया गया ना, पहले हमें पता भी नहीं था। कल शाम को हम जब देखे, क्योंकि हमें जो टेंट लगाया बापी था उन्होंने हमें बताया था कि आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, हमको पता नहीं था कि यहाँ पे एक नाटक भी है। हमको आज सुबह पता चला दोपहर को लगभग 2 बजे कि यहाँ पे एक नाटक का भी प्रोग्राम है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो माइक वाले या लाइट वाले जिसको हमने बोले थे वो लोग आके उन लोगों को रिटर्न जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइक सेट सिस्टम था, एक क्या बोले आपका कि लाइट का अरेंजमेंट था, तो हम उसकी वजह से नहीं कर पाए। अभी जो दूसरा लाइट और माइक वाला है ये लोग भी थोड़ा ये कर रहा है कि हम लोग को पहले बोले नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़्यादा माइक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम मिलाद नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बस हम लोग अनाउंस करते हैं कि जो डोनर्स हैं वो लोग यहाँ पे ऊपर आ जाएं, और जो लोग खिचड़ा लेना है जिनको वो साइड में चले जाएं, वहाँ पे बाहर खिचड़ा बांट रहा है, बस ये अनाउंस करते हैं। इसलिए हमने कई माइक वाले से कहा था कि हमें 2 हॉर्न चाहिए, 2 स्पीकर चाहिए, 1 माइक चाहिए, और 2 हॉलीजन होने से हमारा हो जाएगा काम। लेकिन क्या उसके लिए कोई 15,000 मांग रहे हैं, कोई 20,000 मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये समझिए कि बिल्कुल भी नाइंसाफी है। आप खुद सोच सकते हैं कि 2 हॉर्न, 2 पंखा और 2 क्या बोला आपका 2 हॉलीजन का कोई 15,000 कैसे मांग सकता है? अच्छा तो ये तो मनमानी हुआ ना। अब किसी का भी त्यौहार हो, आपका जो रेट है रेट वही रहना चाहिए, बदलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ हुई। अभी किसने क्या किया हम वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये हम चाहते हैं कि हमारे नबी का जन्मदिन है, हम लोग हंसी खुशी ये त्यौहार हमेशा मनाते हैं, और इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से मनाएंगे। लेकिन जितने भी लोग हैं मैं उनको कहूँगा कि अमन और शांति के साथ इस्लामपुर की जो ज़मीन है ये अमन और शांति की ज़मीन है, यहाँ पे कोई भी उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हम लोग जो भी इंतजाम करें हम लोग उसमें हाथ बटाने की कोशिश करें, और चाहे कि आप जिनको भी लेकर आएँ, कोई भी रैली में रहे, उनसे कोई गुस्ताखी ना हो, किसी भी दूसरे धर्म जाति मजहब के ऊपर उंगली ना उठाए, किसी दूसरी चीज़ के बारे में नारा ना लगाए, जो अपने दीन के बारे में, जो अपने नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में, उसके बारे में नारा लगाएं, और ऐसी बात ना कहें जिससे किसी को कोई तकलीफ हो, किसी की आस्था पर कोई उंगली उठे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो जुलूस हमेशा से निकलता आ रहा है, हमेशा अमन और शांति के साथ होता है, ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इसमें किसी को भी उंगली उठाने का मौका ना दें, और जो देश की परिस्थिति है वो इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस प्रोग्राम के जरिए हमें एक मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे नबी जो थे वो अमन का गहवार थे, वो अमन की मैसेज देने के लिए आए थे दुनिया में, कि दुनिया में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक ही होता है, सबके अंदर एक ही जैसा का जान होता है, सबके अंदर एक ही तरह का ब्लड होता है, और सभी एक ही तरह के होते हैं। बस थोड़ा सा फर्क है, कोई काला कोई गोरा होता है, लेकिन इंसान इंसान होता है, मौत सबको आती है। सब अगर भाईचारे के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे तो हम लोग आखिरत में भी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार पाएंगे। तो वही है, हम ये मैसेज करेंगे कि हमारी जो नबी है
उनके सुन्नत के मुताबिक हम लोग नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर रास्ते से निकले, ताकि अगर हमें कोई नॉन मुस्लिम भाई भी देखे तो हमसे देखकर सबक लेके भाई हम भी अगर अपने भगवान के ऊपर या किसी के लिए अगर कोई रैली करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो हम भी इस तरह से निकालेंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और हम जिनके लिए निकालते हैं वो खुश हो जाए। ये मैसेज देना चाहूँगा। गुज़श्ता साल से पहले साल काफी तादाद में बड़े प्रोग्राम का बड़े पैमाने में प्रोग्राम हुआ था जी। 2 साल से आप मुक्त मंच में कर रहे हैं, पिछले साल गुज़श्ता साल और इस साल, तो कितने आदमी का खिचड़ा इस बार का इंतजाम रहेगा? इस बार लगभग हम लोग का 25,000 आदमी का 20 से 25,000 आदमी का होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये छोटा मंच है। इतनी बड़ी भीड़ को लगभग 40 से 50,000 लोगों को इसमें समाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब अंदर नहीं जा सकता है यहाँ पे। तो इसलिए देख पा रहे हैं कि आपके सामने छोटा ही है, लेकिन कोर्ट मैदान में जो किए थे उसमें हमारा 3 गेट था, तीनों गेट पे लोग बांटने वाले थे और पकाने का बहुत बड़ा जगह था कोर्ट मैदान में, तो परेशानी नहीं होती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से प्रोग्राम बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर जब अगले साल कोर्ट मैदान मिलेगा तो हम लोग इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे सबसे बड़ा हमें फायदा ये था कोर्ट मैदान होने की वजह से कम वहाँ पे 200 यूनिट ब्लड होता कोर्ट मैदान में होने से। और यहाँ पे क्या होता है, छोटी जगह होने की वजह से सबको दिख नहीं पाता है, और सब कोई क्योंकि इतनी भीड़ में ना लोगों को पता नहीं चलता किधर हॉल है। जी जी, और अंदर भी जाते थे कुछ आदमी भर जाते हैं, जल्दी हॉल भर जाता है, तो दिक्कतें होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि लोग आए अमन और शांति के साथ। अगली बार जो ब्लड बैंक की टीम थी वो लोग जो रैली के बीच में फंस गया था, जिसकी वजह से उनको आने में बहुत दिक्कत हुई थी, तो वो लोग जब उनको आना था 9:30 बजे, लेकिन वो लोग पहुंचे थे 11 बजे, जबकि हमारी रैली के कम से कम 15 से 20 जुलूस जो है वो निकल चुकी थी। आपको पता है कि मार्केटिंग से जो जुलूस निकलती है 9:15 बजे, तो यहाँ से 10 बजे क्रॉस कर लेते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक। तो हमने इस बार अरेंज किया है कि ब्लड बैंक वाले 9 बजे तक यहाँ पे रेडी रहेंगे और 9 बजे से ही ब्लड लेना शुरू कर देंगे, और 9:15 बजे से वहाँ जुलूस चालू, 9:15 बजे वहाँ जुलूस चालू होगा। उसके बाद जो लोग आएंगे वो लोग आहिस्ता तक देते जाएंगे, क्योंकि भीड़ ना हो, गैदरिंग ना हो। हम भी चाहेंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म मजहब से हो, अगर आपकी रैली के पास से गुजरे तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो आप लोग उसको बिल्कुल साइड दिए। और जिस तरह से हम लोग करते आए हैं कि हमेशा रास्ते में जब हम लोग चलते हैं तो कोई भी एम्बुलेंस हो, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, बस हो, कोई भी प्राइवेट गाड़ी हो, जी जी हाँ, कोई भी गाड़ी हो, जो भी इमरजेंसी में, उसके लिए हम लोग साइड रास्ता निकालते हैं, और हमें निकालने की ज़रूरत है। ये एक मैसेज अच्छा जाता है। हमें अमन और भाईचारगी को अमन कायम रखने के लिए हमें पहले अपनी भाईचारगी को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। हमसे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति, किसी मजहब के भाई को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये हम लोग मैसेज देने की कोशिश करेंगे। की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीजे में पाबंदी है, आप भी अपने तंजीम ऑल इंडिया रजा कमेटी की तरफ से अपील रखे थे कि डीजे के ऊपर पाबंदी लगाया जाए, और इस पे पिछले साल आप लोग कामयाब भी हुए थे, बहुत कम आदत में उसमें डीजे शामिल था जुलूस में। इस बार क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कोशिश थी हमारी, हम लोग 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि डीजे जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जो नबी है वो मतलब पूरा अमन पसंद थे। उनको बिल्कुल भी डीजे पसंद नहीं था कि ऐसे साउंड हो, जिससे जी जी बिल्कुल नहीं, फिर भी वो ऐसे चिल्लाने वाले को पसंद नहीं करते थे। हमारे नबी चिल्लाने वाले को पसंद नहीं करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम उनके सुन्नत पर चलें, आहिस्ता से करें, अपने धर्म के बारे में नारा लगाएं। और डीजे जो है ना, ये समझिए कि एक तरह का नाच गाना डांस के लिए ठीक है, क्योंकि ये नात के लिए ठीक नहीं है, नारा लगाने के लिए ठीक नहीं है, हमारे मजहब के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम लोगों को अपने नबी के जिस नबी की हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें उसके मुताबिक ही मनाना पड़ेगा, उनके सुन्नत पर चलकर ही मनाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसे हमारी कोशिश थी, 3 साल पहले हमने कोशिश की थी, लगभग 50% बंद हुआ था, अगले साल 90% हुआ, 10% कुछ बचा हुआ था। इस बार हमने फिर कोशिश की और पोस्टर लेकर हमने प्रशासन के साथ मिलकर एडवर्टाइज भी किया उसका कि डीजे बिल्कुल भी बंद है। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया, उनको भी हमने मना किया है कि डीजे इस्लामपुर में बिल्कुल बंद है। अगर आप डीजे या कुछ करते हैं तो अपने गांव में घूमें, टाउन में मत आए, और कानूनी कार्रवाई हो गया बिल्कुल करे तो हमारी कोशिश है ना कि बिल्कुल 100% डीजे बंद हो जाए, और जिस तरह से हमारे से जुलूस अमन और शांति के साथ निकलता है इस तरह से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে মুক্ত মঞ্চ বিগত বছরের মতো এবছরও তৈরি হচ্ছে, এবং সেখানে প্রতি বছরের মতোই তাবারুকাত যা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা করা হয়, সেই তাবারুকাত কিন্তু এই মুহূর্তে প্রস্তুতি, তার কিন্তু তাবারুকাত তৈরির প্রস্তুতি চলছে। সেখানে কিন্তু বেশ কিছু মানুষের বসার ব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি রক্তদান শিবির করার জন্য যে ব্যবস্থাপনা, সেই ব্যবস্থাপনা কিন্তু শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, একদম মুক্ত মঞ্চের পাশেই যে রবীন্দ্র স্ট্যাচু রয়েছে সেখানে, এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব
সেখানকার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে সুনহেরি কমিটি থেকে শুরু করে বাজার রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে শুরু করে আমরা যেমনটা জানতে পাচ্ছি যে অন্যান্য যে সংগঠনগুলো আছে তারাও কিন্তু ইতিমধ্যেই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে সহযোগিতা করবার জন্য হয়েছে। এবং আপনারা যে চিত্র এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতি বছর যারা হচ্ছে এই খিচড়ার ব্যবস্থাপনায় থাকেন তারা কিন্তু প্রত্যেকে এই মুহূর্তে রাত জেগে হচ্ছে এই ব্যবস্থাপনা করবেন। করা পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে কিন্তু প্রহরা দেওয়ার জন্য বা সমস্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামান্য যাতে খামতি না হয় তার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এবং সবথেকে বড় কথা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই সবচেয়ে বড় মিশাল বা নজির আপনারা দেখতে পারবেন এই মুহূর্তে হিন্দু রমণী যারা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে সে রান্নাবান্নার যে কাজকর্ম এবং যে ক্যাটারার রয়েছেন আমরা তাকেও ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তারা কিন্তু আগামীকাল শান্তিপ্রিয় নবী এবং বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের যে জন্মদিন সেই জন্মদিন উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির পক্ষ থেকে যে খিচড়া বা তাবরুকের ব্যবস্থাপনা থাকবে তার জন্য কিন্তু তারা তৈরি হয়েছেন। এটাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এবং এই বিষয়গুলোকে আমরা বারবার এই জন্যই তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমরা হয়তো নিজেদের মধ্যে বিভেদ বা বৈরিতা তৈরি করার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের রক্তের রং লাল, যে রক্তের রঙের উপরেই গুরুত্ব দিয়ে এবং মানুষের রক্তই মানুষকে দেওয়া যায় তার উপরে গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটির পক্ষ থেকে আগামীকাল রক্তদান শিবির বা ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এখানে অনুষ্ঠিত হবে। এবং তারপর যারা আপামর মানুষজন, এই হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজন কাল বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষে ইসলামপুর শহরে মিছিল করবেন, জুলুস করবেন, তাদের জন্য কিন্তু সেই খিচড়ার ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তাই আমাদের মধ্যে যে বিভেদ বা বৈরিতা সেটাকে দূর করাটা অবশ্যই যে কোনো ধর্মের, সেটা সনাতনী ধর্মের হতে পারে, খ্রিস্টান ধর্মের হতে পারে, মুসলিম ধর্মের হতে পারে, তাদের যারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই সমাজে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন, পীর পয়গম্বর থেকে শুরু করে নবী করিম থেকে শুরু করে বন্দে পুরুষোত্তম রাম থেকে শুরু করে যারা হচ্ছে সমাজের একদম সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন, তাদের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ আস্থা এবং ভরসা থাকা উচিত। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে দেখছেন, কিন্তু তার পাশাপাশি ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে আমরা নিরাপত্তা বিষয়ে যে বিষয়টা জেনে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। বিগত দিনগুলোর মতো সেই রামনবমীর মিছিল হোক অথবা ঈদ মিলাদুন নবী, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটি এক্সিট এবং এন্ট্রি পয়েন্ট ইসলামপুর শহরের যা বিহারকে ইসলামপুরের সঙ্গে কানেক্ট করে সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সূত্রে জানা গেছে যে বিগত বছরের মতো এবছরও ভিডিও সার্ভেলেন্স পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা হচ্ছে সমস্ত যে জায়গাগুলো আছে সেখানে থাকবে। পাশাপাশি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ ইতিমধ্যেই কিন্তু ইসলামপুরের চৌরিঙ্গি মোড়, ইসলামপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এবং মুক্তমঞ্চ ইসলামপুর এখানে কিন্তু পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ করা হয়েছে। মার্কেট রেগুলেটিং কমিটি যেখানে আছে সেখানে ইতিমধ্যে পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশদেরকে কিন্তু সজাগ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে যাতে কোনো প্রকারের অশান্তির বাতাবরণ বা অপ্রীতিকর ঘটনা ইসলামপুর শহরে কোনোদিনও ঘটেনি, যা আর কোনো পুনরাবৃত্তি না হয় সেই বিষয়, অর্থাৎ শান্তি এবং সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে এই জুলুস বা মিছিল আগামীকাল শহর হচ্ছে পরিভ্রমণ করবে, তার জন্য কিন্তু ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে সার্ভেলেন্স থাকছে। পাশাপাশি যেমনটা ইসলামপুর থানার আইসি মিস্টার বিশ্বাস জানিয়েছেন আমাদেরকে, আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, তিনি যেমনটা জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা সেরে ফেলা হয়েছে। শহরে অন্য যে হচ্ছে বিভিন্ন পোস্টার বা ব্যানার বা ইত্যাদি ছিল, বা বলা চলে যে কিছুদিন আগেই রামনবমী হয়েছে তার জন্য যে ঝান্ডাগুলো ছিল সেগুলোকে ইতিমধ্যে খুলে ফেলা দেওয়া হয়েছে, কারণ সেটি কোনো কারণে কোনো অনিচ্ছাকৃত অবদানবশত যদি সেগুলো খুলে পড়ে এবং সেটা পদদলিত হয় তাহলে সেটি হচ্ছে অবশ্যই আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করবে, সেদিকে যেমন ধ্যান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেকটি জায়গাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং প্রত্যেকটি পুলিশের সাথে কিন্তু অবশ্যই তাদের যে সার্ভেলেন্স ক্যামেরা সেই সার্ভেলেন্স ক্যামেরা থাকছে, প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে পুলিশ থাকবে। এবং পাশাপাশি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যেই সমস্ত জায়গাতে কোনো প্রকারের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাবেন সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু রীতিমতো পুলিশের সহযোগিতা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং বিভিন্ন যে সামাজিক সংগঠন ক্লাব তারা হচ্ছে পানীয় জল থেকে ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা করেন, যারা সমাজের দায়িত্বশীল তারা কিন্তু তাদের সহযোগিতা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং পাশাপাশি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে গোটা শহরে কিন্তু পুলিশ ঠিক মতলব জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী বা বলা চলে জুলুসের আগে কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গাতে পেট্রোলিং চলছে, এমনটাই কিন্তু আমরা শহরে আজকে দেখেছি। এবং পাশাপাশি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ইতিমধ্যেই কিন্তু পুলিশের যে ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন জায়গাতে শহরের মধ্যে অর্থাৎ সেখানে ডিপ্লয় করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যাতে কোনো বিন্দুমাত্র কোনো প্রকারের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কোথাও তৈরি না হয়। এবং এই মুহূর্তে আপনারা যে অন ক্যামেরা যেটা দেখবেন হচ্ছে কোইন্সিডেন্টালি এই মুহূর্তে ইসলামপুর থানার আইসি স্বয়ং কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু একদম যে মুক্ত মঞ্চ সেই মুক্ত মঞ্চ পরিদর্শন করছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে
করতে, এবং যাদেরকে অলরেডি ডিপ্লয়েড করা হয়েছে পুলিশ ফোর্স, তারা কিন্তু ইতিমধ্যে সেই জায়গাতে এসেছেন এবং সেখানে এসে কিন্তু তিনি যে নির্দেশ দেওয়ার সেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছেন। আমার সহপ্রতিনিধি রাজের কাছে কি তথ্য রয়েছে পুরো বিষয় নিয়ে, কারণ রাজ, প্রতি বছরই কি আমরা দেখি ইসলামপুর শহরে খুব সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে কিন্তু এখানে এই ধরনের ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সব উৎসব পালিত হয় এবং আজ আগামীকাল ঈদ মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠিত হবে। কি তথ্য রয়েছে তোমার কাছে, যদি একটু আমাদের দর্শক শ্রোতাদের জানাও হিন্দি। हाँ बिल्कुल सही। जब्बारदा आपको बता दें, भारतवर्ष के चिकन नेक के नाम पर जो है इस इस्लामपुर को जाना जाता है, और इस्लामपुर की यह विशेषता है कि इस इस्लामपुर में हर जाति हर धर्म के लोग हर उत्सव को एक साथ मिलकर काफ़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। रामनवमी की जैसा बृहद उत्सव जो है इसी इस्लामपुर के राजपथ के ऊपर धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग जो है सहायता करते हैं, मिलकर साथ मनाते हैं। वहीं नबी का जो जन्मदिन है उसको भी जो है काफ़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। हम लोग हर तरह की जो है तस्वीरें रामनवमी की जिस तरह दिखाते हैं, उसी तरह से नबी के जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य में जो है विभिन्न जो तैयारियां हैं, खास करके विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वह जो है आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुबह करीब 9 से 9:15 बजे के बीच इस्लामपुर के रेगुलेटेड मार्केट से जो है महारैली प्रारंभ होने वाली है, तथा रजा कमेटी की ओर से जो जानकारी दी गई है कि यह महारैली जो है वह इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट से प्रारंभ होगी, तथा इस्लामपुर शहर के आश्रम पारा मोड़ होते हुए, पुराना बस स्टैंड होते हुए, चौरंगी मोड़ होते हुए, इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड से सीधे आते हुए जो है वीआईपी रोड के माध्यम से इस्लामपुर शहर के मुक्त मंच जो है यहाँ पर आकर पहुँचेगी, तथा इस जगह पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, इस्लामपुर शहर में सबसे बृहद रक्तदान शिविर जो है इस नबी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल किया जाता है, तथा एक समय ऐसा था जब 200 से भी अधिक यूनिट रक्तदान जो है इस जो महापर्व है इसमें दान किया करते थे। लेकिन कुछ कारण से जो है फिलहाल जो है यह कार्यक्रम पहले जो है कोटमाट में होती थी, लेकिन अभी जो है पिछले साल से जो है मुक्त मंच में हो रही है, जिस कारण से रक्तदान में कुछ डोनर जो है कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रजा कमेटी की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, कम से कम जो है 100 यूनिट रक्तदान कल जो है किया जाएगा। साथ ही साथ खिचड़ा की व्यवस्था की गई है, जिसको हर जाति हर धर्म के लोग जो है तैयार कर रहे हैं। यह दृश्य अवश्य जो है फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि हर जाति हर धर्म के लोग जो है यहाँ पर खिचड़ा किस तरह से बनाया जाए इसकी तैयारी में लग चुके हैं, तथा रात भर जो है खिचड़ा तैयार की जाएगी, तथा कल जो भी दर्शनार्थी जो भी नबी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो जुलूस में जो शामिल होंगे, महारैली जो होगी उसमें शामिल होंगे, उन लोगों के लिए खिचड़ा की व्यवस्था की गई है। खास करके इस्लामपुर शहर के साथ साथ इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न इलाके, ग्वालपुर हो, चोपड़ा हो, या फिर इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न जो इलाके हैं, उन सभी जगहों से इस्लामपुर शहर में जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शनार्थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग जो है इस नबी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो महारैली का आयोजन किया जाता है उसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। उनके लिए खिचड़ा की व्यवस्था की गई है, तथा रजा कमेटी की ओर से जो जानकारी दी गई है, लगभग 25,000 जो रैली में शामिल होंगे ऐसे व्यक्तियों के लिए खिचड़ा की व्यवस्था की गई है, तथा इस मुक्त मंच के ठीक सामने जो काउंटर तैयार की गई है वहां पर जो है खिचड़ा वितरण होगी, तथा इस मुक्त मंच में जो भी रैली में शामिल होंगे वह यहाँ पर आएंगे तथा रक्तदान करेंगे। उसके बाद ही जो है वह खिचड़ा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद धीरे धीरे इसी रास्ते से जो है रैली एक एक करके टोली जो है आगे निकल जाएगी। यहाँ पर इस्लामपुर पुलिस जिला की ओर से सिर्फ इस्लामपुर मुक्त मंच में नहीं बल्कि इस्लामपुर शहर के विभिन्न जगहों पर सिक्योरिटी की इंतजाम की गई है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, खास करके इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो उन सब जगहों पे काफ़ी नज़रदारी की जा रही है, तथा इंडिया बंगाल बिहार जो बॉर्डर है उस सब जगहों पर नाका चेकिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ रात भर जो है इस्लामपुर शहर के विभिन्न रास्तों में पेट्रोलिंग चलेंगी। इस मुक्त मंच में देख पा रहे एकाधिक सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। इस्लामपुर थाना के आईसी कुछ देर पहले जो है खुद यहाँ पर आए थे तथा सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण कर रहे थे। हर कवरेज कल की जो महापर्व है, जो महारैली होने वाली है नबी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, लाइव टेलीकास्ट इस्लामपुर मार्केटिंग से लेकर आश्रम पारा मोड़ हो, पुराना बस स्टैंड हो, चौरंगी मोड़ हो, नया बस स्टैंड हो या फिर मुक्त मंच हो, लाइव कवरेज देखने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा न्यूज़ 2 इंडिया के साथ। जब्बारदा के पास इस विषय को लेकर क्या अपडेट है बस जानने की कोशिश।
রাজ ধন্যবাদ। এতক্ষণ আমরা সেই প্রিপারেশন, আমরা সব ধর্মের সমস্ত উৎসব একদম দায়িত্বশীল মিডিয়া হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং এই মুহূর্তে মুক্ত মঞ্চ থেকে অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটির তত্ত্বাবধানে যে খিচড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় 25,000 লোকের জন্য করা হবে সেটা যেমন রাখলাম, পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে তথ্য আমরা পেয়েছি ইসলামপুর পুলিশ জেলার অধীনে প্রায় হচ্ছে ব্লক এলাকাতে 50টি ছোট বড় র্যালি হবে এবং ইসলামপুর শহরে 48টি হচ্ছে ছোটোখাটো হচ্ছে সাব র্যালি হচ্ছে একদম সংযুক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ র্যালি ইসলামপুর শহরে উপস্থিত হবে, যেখানে প্রায় 40 থেকে 50,000 লোকের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। পাশাপাশি অন্যান্য হচ্ছে যারা দর্শনার্থী আছেন অন্যান্য ধর্মেরও, তারা কিন্তু মহা আনন্দে এবং সমারোহে কিন্তু এই র্যালিতে হচ্ছে অংশগ্রহণ করবেন। যেমনটা তথ্য রয়েছে যে ইসলামপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান দেশবন্ধু পড়া আদর্শ সংঘ থেকে শুরু করে তেহরিকে পায়গাম এ হাট থেকে শুরু করে একাধিক সুনারি কমিটি থেকে শুরু করে একাধিক সামাজিক তেহরিকে মোজাসম থেকে শুরু করে একাধিক ক্লাব প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে তারা কিন্তু এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে অনেক বাজার কমিটির কর্মকর্তারা তারা কিন্তু আগামীকাল পানীয় জল সেই হচ্ছে দর্শনার্থী বা যারা জুলুস অংশগ্রহণ করবেন এবং শরবতের ব্যবস্থা করবেন। আমরা অবশ্যই হচ্ছে মিনি ভারতবর্ষ ইসলামপুরের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা অবশ্যই তাদের এই প্রয়াসকে অবশ্যই সাধুবাদ এবং কুর্নিশ জানাবো এবং বিশ্ব শান্তির প্রতীক এবং সেই সঙ্গে মহানবী বিশ্বনবীর যে জন্মদিন সেই জন্মদিনে আমরাও সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীকে আপামর বঙ্গবাসীকে আরেকবার নবী দিবসের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামীকাল আপনার আমার দিন অনেক শুভ হোক এবং সকলে সম্প্রীতির বাতাবরণে এই উৎসবকে পালন করি এবং আরেকবার গোটা ভারতবর্ষের বুকে টেকনিক্যাল ভাষাতে বা মিলিটারি ভাষাতে চিকেন নেক বলে পরিচিত ইসলামপুর মহকুমার গুরুত্বকে আরও বেশি মর্যাদার আসনে আমরা আসীন করি, এটাই আমাদের প্রত্যেকের প্রয়াস হোক। সভাপতি অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ রিপোর্টার রাজ সাহানির সঙ্গে আমি চিফ রিপোর্টার জব্বার আলী আপাতত বিদায় নিচ্ছি। তবে আগামীকাল দেখা হচ্ছে। অবশ্যই সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং আমরা সুস্থ থাকি যাতে আপনাদেরকে আমরা সেই লাইভ কভারেজে পুরো একদম কভারেজ একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারি। তার জন্য আপনাদের কাছেও আমরা অবশ্যই দোয়া এবং অবশ্যই প্রার্থনা আমাদের জন্য করবেন যাতে আমাদের সুস্থতা হচ্ছে আগামীকাল বিরাজ থাকে। This is Jabbar Ali signing off and meeting you in the next live with some important updates. Good night.